Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Ifat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. टीपीसीसी के सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीआरएस एमएलए केटीआर को मशवरा दिया है कि खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर स्कीम नाफिज की गई है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए वो साड़ी पहनकर आरटीसी बसों में सफर करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुश्तरका आदिलाबाद जिले के निर्मल में मुनक्किद इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की जानिब से ये कहने पर कि कांग्रेस हुकूमत ने 5 महीनों में कुछ भी तरक्याती काम नहीं किए, शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने केटीआर को मशवरा दिया कि वो साड़ी पहनकर आरटीसी बसों में सफर करें और वादे के मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई है या नहीं उसका जायजा लें। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि अगर किसी ने केटीआर से टिकट लेने को कहा तो वो ये समझ लें कि महालक्ष्मी स्कीम नाफिज नहीं की गई है। మనం తీసుకున్నాం ఇన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేస్తుంటే కేటీఆర్ అంటున్నాడు మీ 6 గ్యారెంటీలు అమలు కాలేదని। అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి కేటీఆర్ కో సూచన చేస్తున్నా, అయ్యా నీకు సినిమా పరిశ్రమ వాళ్ళు బాగా తెలుసు కదా, నువ్వు మంచిగా చీర కట్టుకొని తయారయ్యి ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కు। కేటీఆర్ కు సూచన చేస్తున్నా, మంచిగా చీర కట్టుకొని ఆడపిల్లలాగా తయారై ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కు। ఒకవేళ నిన్ను టికెట్ అడిగితే 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయనట్లే, టికెట్ లేకుండా నువ్వు ఇంద్రవెల్లి గాని, నాగోబ జాతర గాని, భద్రాచలం రాముల వారిని గాని, యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకోవడానికి ఒక్క పైసా అడగకపోతే మా 6 గ్యారెంటీలను అమలు చేసినట్టే। అందుకే మిత్రులారా, ఇవాళ మనం మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం। మనం ఆదిలాబాద్ నుంచి అత్రం సుగుణను ఎంపీగా గెలిపించుకుందాం। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह केसीआर ने रईतु बंधु की इजराई को लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया है कि रईतु बंधु फसल लगाने से पहले दिया जाता है या फिर फसल काटते वक्त। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से 9 मई से रईतु बंधु की रकम किसानों के खातों में मुंतकिल करने का ऐलान करने पर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि रईतु बंधु किसानों को फसल उगाने से पहले दिया जाता है, फसल की कटाई के वक्त नहीं दिया जाता। केसीआर ने करीमनगर जिले के विनावंका में बीआरएस के एक जलसेआम को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक अभी भी जारी है और रियासत की तामीर-ए-नौ का काम मुकम्मल होना है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सनतों को बिजली की फराहमी नहीं हो रही है और सनतकारों को मुश्किलात का सामना है। తెలిసిపోయింది కదా, మొదటి దెబ్బనే పడే రైతు బంధు మన ముఖ్యమంత్రి పోయి నేను 9 తారీఖులో కూడా మొత్తం ఎత్తా అంటాడు। ఏది పంటలు కోసి పంటలు వచ్చి జోకుతుండ్రు దిక్కు నాటేసేటప్పుడు ఇస్తాడా, ఎవడన్నా జోకేటప్పుడు ఇస్తాడా? అంటే ఎంతపాటి పరిపాలన। ఇంకొక మాట, ఇలా పేపర్ చదివితే నిజంగా నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాయి। జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చాలా కష్టపడి రాష్ట్రం యొక్క గౌరవాన్ని పెంచినాం। ఐటీ రంగంలో కానీ పరిశ్రమల రంగంలో కానీ బ్రహ్మాండమైన పెట్టుబడులు వస్తూ ఉండే తెలంగాణకు। నరేంద్ర మోడీ కూడా అసూయపడేంత పెట్టుబడులు వస్తూ ఉండే। ఇవాళ చదివితే ఓ 1000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టే కంపెనీ మద్రాసుకి వెళ్ళిపోయింది, తమిళనాడు రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయింది। ఇవాళ చూస్తే అల్యూమినియం అండ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీకి కరెంటు కోతలు పెడుతున్నది ప్రభుత్వం, రోజుకు 5-6 సార్లు ట్రిప్ అవుతున్నది। వాళ్ళ మధ్యలో ప్రాసెస్లో పని ఆగిపోయి వాళ్ళు పెదవి విరుస్తున్నారు। ఇక తెలంగాణ లాభం లేదు, వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి వార్త వచ్చింది। నాకు చాలా బాధ కలిగింది, చాలా దుఃఖం కలిగింది।
4-5 నెలల దుర్మార్గులు ఎంత పని చేసిరి, ఎంత మంచిగా ఉన్న తెలంగాణ ఎట్లా ఆగమైపోయాయి, ఇది ఎట్లా అని చెప్పి చాలా బాధపడ్డాం. ఈ బాధ నివారణ కావాలి. నేను మీ అందరిని ప్రార్థించేది ఒకటే. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने निर्मल में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हैं और वो अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को वापस लेना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क में आइन को बदलने की साजिश हो रही है और अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो आइन को बदल दिया जाएगा। आइन में तब्दीली का मतलब तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करना है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए के फंड्स माफ कर दिए, हालांकि उसी 16 लाख करोड़ रुपए की रकम से 25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में अवाम से किए गए तमाम वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा और अगर कांग्रेस मरकज में बरसर इक़्तिदार आती है तो ख़वातीन को वादे के मुताबिक रखा मिलेगी। उन्होंने बेरोजगारों पर तवज्जो न देने पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिदार में आने पर 30 लाख आसामियां फौरी तौर पर पुर की जाएगी। वायनाड रुकन पार्लियामेंट ने इंतखाबी जलसे से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना में वेस्टलैंड का मसला भी जल्द ही हल कर दिया जाएगा। पिछली BRS हुकूमत पर उन्होंने कबायलियों को तबाह करने पर नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जात पात की मर्दमशुमारी भी करवाई जाएगी। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको हम हटा देंगे। పర్మనెంట్ నౌకరీయా మిలేంగి, టెంపరీ నౌకరీ नहीं मिलेगी। ఈ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాలలో ఉన్నటువంటి టెంపరరీ ఉద్యోగాలను రిజర్వేషన్లను గండి కొడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ వ్యవస్థను మేము తీసేస్తాము। नरेंद्र मोदी देश को बता दें कि वो 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर लगा रखा है उसको हटा देंगे। నరేంద్ర మోడీ అంటారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 50% రిజర్వేషన్ ని కూడా తీసేయాలని అనుకుంటున్నారు। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ త్వరలోనే ఆ యొక్క రిజర్వేషన్లు పెంచే ఆలోచనలో नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने किसी भाषण में ये नहीं बोला कि मैं रिजर्वेशन का जो 50% का बैरियर है उसे हटा दूंगा। ఇంతవరకు నరేంద్ర మోడీ గారు తన ప్రసంగాలలో ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు మేము 50% ఉన్న రిజర్వేషన్ని పైకి పొడిగిస్తామని ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు। उल्टा नरेंद्र मोदी और उनके विचारधारा वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं। అంతేకాకుండా నరేంద్ర మోడీ గారు వారి యొక్క వ్యక్తులు ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని కూలగొట్టాలని ప్రయత్నమే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, रिजर्वेशन बढ़ाना है और ये जो अमीरों की सरकार चला रहे हैं, 22 लोगों की सरकार चला रहे हैं, इनको हटाना है और गरीबों की सरकार लानी है। किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार लानी है। మనందరం కలిసి ఈ దేశ భద్రత కోసం ఈ सनतनगर के BRS MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने रामगोपालपेट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ को वोट देने की अपील की है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की तायद में साबिक वजीर व सनतनगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने इतवार को रामगोपालपेट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी लोगों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर की हैसियत से अवाम की भलाई के लिए क्या किया है, जिसके लिए उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। तलासानी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करते हुए लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। BRS MLA ने कहा कि सिकंदराबाद के तमाम लोगों ने पद्माराव गौड़ को सिकंदराबाद से जिताने का फैसला कर लिया है।
तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने नागर कर्नूल के पार्लिमानी उम्मीदवार मल्लू रवि की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने आलमपुर हल्के के एरावली चौराहे पर मुनक़िद जना जत्रा में हिस्सा लिया। वनापट्टी के एमएलए मेघा रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने पवेरू में भट्टी विक्रमार्का और तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दनियासना भट्टी विक्रमार्का ने नागर कर्नूल के पार्लिमानी उम्मीदवार मल्लू रवि की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आवाम से जमहूरियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने और नागर कर्नूल हल्के से मल्लू रवि को कामयाब बनाने की अपील की है। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School Purani Haveli branch is the right choice. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुर असेंबली हल्के के महल-ए-जात में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। तेलंगाना में 13 मई को मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्का असेंबली बहादुरपुरा के फतेह दरवाजा, कुमारवाड़ी, गाजीबंदा, अलीनगर व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने, अपने घरों से निकलकर वोट डालने पर जोर दिया। सदर मजलिस ने राय दहिंदों से अपील की है कि वह हल्के पार्लिमान हैदराबाद से कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बीआरएस के सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस के पार्लिमानी उम्मीदवार की तायद में सूर्यापेट हल्के के गोमीवेला ग्राम पंचायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में हर घर नलों के जरिए पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन अब पीने के पानी का मसला है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि 4000 रुपये वजीफा देने का वादा करते हुए बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस पार्टी ने लोगों को सिर्फ 2000 रुपये ही दिए हैं। सूर्यापेट एमएलए ने पार्लिमानी इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की जीत को यकीनी करार दिया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तमाम लोगों से इस इलेक्शन में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस इलेक्शन में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। मरकजी वजीर का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी कई सालों से काम कर रही है और इससे पहले कभी ऐसा मुस्बित माहौल नहीं देखा गया जितना आज है। ख़वातीन, नौजवान, किसान और मतवसत तबके के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देही और शहरी इलाकों में मकबूलियत हासिल कर रही है।
खम्मम के वैरा हल्के में बीआरएस कायदीन के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस कारकुनान की जानिब से बरहमी का इजहार किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक खम्मम के वैरा हल्के के कोनी जरला मंडल के बीआरएस सदर वाई चिरंजीवी और सोसाइटी प्रेसिडेंट चेरू कमाली रवि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बीआरएस लीडर्स के कांग्रेस में शामिल होने के इतलात पर पार्टी कारकुनान ने बरहमी जाहिर की है। कांग्रेस कारकुनान का कहना है कि वो बीआरएस लीडरों के एमएलए रामदास नायक के कैंप ऑफिस में दाखिल होने को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने इतवार को पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के हमरा लंगर हाउस, पुलिस स्टेशन लेन, तालिब अली बिल्डिंग, महजिब कॉलोनी, शिया बस्ती, हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी और अतराफ व अकनाफ में घर घर मजलिस मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात में अपने घरों से निकलकर वोट डालें और सदर मजलिस को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और चिश्ती फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का आखिरी तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल खुसरो बियाबानी सदर नशीन रियासती हज कमेटी की ज़ेर सदारत तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तराक से आज़मीन हज का आखिरी मरकजी तरबियती इज्तिमा अकबर फंक्शन हॉल वाक़े जहानुमा रोड पर मुनक्किद हुआ। मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद तरबियती इज्तिमा में उलमा व मशाइखीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब किया। हज के 5 अहम दिन से मुताल्लिक़ खुसूसी खिताब हुआ और आज़मीन को तरबियत भी दी गई। एहराम बांधने का तरीक़ा और दीगर उमूर से भी वाकिफ करवाया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता 15 सालों से चिश्ती फाउंडेशन बाकायदगी से तरबियती इज्तिमा का इनेकाद कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने तरबियती इज्तिमा में शिरकत की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तराक से आज़मीन हज का ये तरबियती इज्तिमा अकबर फंक्शन हॉल जहानुमा रोड पर मुनक्किद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ बिला नागा इस तरबियती इज्तिमा का एहतमाम कर रहा है। कि अल्लाह ने हमें अपने मेहमानों की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का तरबियती इज्तिमा इंतहाई कामयाबी के साथ जारी है। इसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख़वातीन शरीक हैं। नीचे मर्द हज़रात के लिए और ऊपर की मंजिल में ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया गया है और तमाम हमारे साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। आज़मीन हज की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उनके लिए गुलस किया, पानी का और जोहर के बाद में इंशाअल्लाह दोहराने का भी उनका इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा से तकरीबन कई घंटों से तरबियती इज्तिमा जारी है। सदर नशीन हज कमेटी और हाजीपेट के सदर नशीन मौलाना गुलाम अफजल खुसरो बियाबानी साहब ने इब्तिदा में खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह यहाँ से जो हैदराबाद से आज़मीन है वो मदीना शरीफ जाएंगे और मदीना शरीफ से
सुन्नत रसूल के मुताबिक इंशाअल्लाह हज अदा करेंगे। और इस मरतबा आज़मीन हज को हर 200 आज़िम पर एक खातिमुल हुज्जाज की सहूलत रखी गई है। इसके बाद मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाशमी ममशाद पाशा साहब क़िबला सदर मरकज़ी मजलिस क़ादरिया और मौलाना हाफिज़ इरफान क़ादरी साहब नायब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब सदर मरकज़ी अंजुमन सैफुल इस्लाम, मौलाना अब्दुर्रहमान हसन क़ादरी साहब खलीफा हज़रत सदरुल शयूख और मौलाना डॉक्टर सैयद उवैस बुखारी साहब ने भी इज्तिमा से खिताब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के इक़रार से और हमारे तमाम साथियों की मेहनत काविश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कामयाब तरीन इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुँच रहा है। कागज नगर में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी व तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आसिफाबाद जिले में सरकारी कोटा के तहत मुंतखब 35 आज़मीन के लिए टीका अंदाजी और हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। कागज नगर के रॉयल फंक्शन हॉल में मुनक्किद एक रोज़ा तरबियती इजलास और टीका अंदाजी कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन हज कमेटी तेलंगाना मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद खासमी ने शिरकत की। जलसे की कार्रवाई कागज नगर हज सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद मुखफ़म अहमद ने चलाई। इस मौके पर मौलाना मोहसिन अली मजहरी, सेंट्रल हज कमेटी ट्रेनर अलहाज ख्वाजा आरिफुद्दीन, हज ट्रेनर अलहाज मोहम्मद खलीलुद्दीन, मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन अशरफी, कांग्रेस कायदीन रावी श्रीनिवास, मुकामी मुस्लिम कायदीन फेडरेशन सदर असरार अहमद, मौलाना मुबीन अहमद खासमी के अलावा आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद रही। मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद खासमी ने इस मौके पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हर हाल में आज़मीन हज को हज हाउस से लेकर वापस हैदराबाद एयरपोर्ट तक तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। बाद अज़ान जिले के आसिफाबाद से सफ़र हज को रवाना होने वाले 35 आज़मीन हज को डॉक्टर नवाता के ज़ेर निगरानी मेडिकल स्टाफ ने टीका लगाया। कागज नगर हज सोसाइटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफख्खम अहमद के शुक्रिया पर जलसे का इख्तिताम हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।